which belong to the family Solanaceae. 4 vegetables like potato, chili, brinjal, and tomato, or belong to the same family, which is known as Solanaceae. The edible part of potato is modified underground stem. It is originated in South America and brought to India in 1600 by the Portuguese. The probable ancestor of all cultivated potatoes is Solanum stenotonum. मीन्स कि जितने भी आज आप पोटैटो की डिफरेंट वैरायटी देख रहे हैं उन सब की उत्पत्ति ओरिजिन इसी सोलेनम स्टेनोटोनम से हुई है. द फर्स्ट mention of potato in India begin in the account of bouquet by the Asaf Khan to Sir Thomas Roe in Ajmer in 1615. Research on potato in India was started at national level by the Imperial Council of Agriculture Research (ICR) at Potato Breeding Station Kupri, Simla in 1935 under IRI New Delhi. The Central Potato Research Institute was established in 1949 with the headquarters at Patna, Bihar, which is headed by Dr. S. Ramanujam as the first director of the institute. Later, the headquarters of CPRI was shifted at Kupri, Simla in 1956. एक मिनट जरा अटेंडेंस हम और लगा लें. गोल्डन कुणाल हाँ. So the CPRI की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग. हेलो. यस सर. हेलो. हाँ, CPRI की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता सर. अरे अभी तो बताया, अभी जस्ट बताया आप लोग को. कहाँ हुई थी? हैं? हेलो.
बिहार में सर। ये है, देखिए आप लोग, द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI was established in 1949 with headquarter at Patna, Bihar, which headed by Dr. S. Ramanujam as the first director of the institute. But the institute CPRI was shifted at Kufri, Simla, Himachal Pradesh in 1956. Variety of the potato. The potato variety are on the basis of its maturity. Early maturing variety, medium maturing variety, then late maturing variety. So early maturing variety like Satha, Gola, कुपरी, खासी गारो, ये यहाँ नहीं होती है। कुपरी, खासी गारो ये शिलांग में। कुपरी, चंद्रमुखी, मतलब जो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी होती है वह 80 से ये करीब 100 दिन में तैयार हो जाती है। देन मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी प्रेसिडेंट, कुपरी मोती, कुपरी ज्योति, कुपरी लालिमा, ये सब हैं। बादशाह है। Then late maturing variety, it takes more than 120 days for its maturity. So in a late maturing variety, कुफरी, नीला, फुलवा। फुलवा का नाम आप लोग सुने होंगे। ये आलू की पहले जो है हम लोग के मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर वगैरह के समय में वैरायटियां आलू की वो सब इसी तरह की थी। गोला थी, साठा थी, फुलवा था, ये सब था। ये अभी क्या है कि जितनी भी आप ये कुफरी सीरीज की देख रहे हैं, ऑल वैरायटी आर डेवलप्ड आफ्टर 1959। Then on the basis of growing season, ग्रोइंग सीजन से मीन्स यहाँ पे है ग्रोइंग प्लेस। सो वैरायटी फॉर प्लेन्स, वैरायटी फॉर हिल्स एंड वैरायटी फॉर प्रोसेसिंग एंड सुटेबल वैरायटी फॉर अदर पर्पज। तो वैरायटी फॉर प्लेन्स, कुफरी चंद्रमुखी, अलंकार, कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, देन कुफरी सतलज, किसान, कुफरी आंगन। वैरायटी फॉर हिल्स, कुफरी कुंदन, कुफरी खासी गारो, कुफरी नौताल, कुफरी नवजोत। These are the variety which is suitable for the hill cultivation under the hill situation. Varacuna 1, Kufri Chipsona 2, Kufri Chipsona 3. Kisan Anand, Kufri Frysona and Kufri Hinsona. All the above varieties are suitable for the processing purpose. Then variety which suitable table purpose, Kufri Khyati, Kufri Sadabahar, Kufri Garima and Kufri Gaurav. The other disease-resistant variety of potato, Kufri Nilma, Kufri Girdhari, Kufri Himsona, Kufri Khyati, Kufri Sadabahar and Kufri Garima. These varieties are more or less or 100% resistant to disease and other disorders of potato.
These are the some variety which is known as hybrid in tomato, like MS92, hybrid JW11660, then hybrid HT-92-621, then hybrid SM-87-185, Pukari Lima, to take on the head. Then soil and climate. Potato can be grown on a well-drained sandy loam. हल्की मिट्टी, इसकी खेती के लिए, आलू की खेती के लिए हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसमें क्या है कि जब हल्की सैंडी लोम बलुई दोमट मिट्टी होती है तो उसमें जो इसके ट्यूबर होते हैं ना आलू के, वह बड़े और हेल्दी ट्यूबर जो है उससे देते हैं। So potato require the sandy loam soil which rich in organic matter, pH 5.5 to 7.5, extremity high or low pH hinder plant growth, reside affecting nutrient availability. Alkaline soil favor the development of scab disease. Scab disease means आप देखे होंगे कि आलू के ऊपरी छिलके पर काले काले चकत्ते से हो जाते हैं, तो उन चकत्तों को ही स्कैब डिजीज हम लोग कहते हैं। वेल पल्वराइज्ड सॉइल फैसिलिटेट बेटर ट्यूबराइजेशन। यदि बढ़िया से आपने मिट्टी तैयार की है खेत की, तो इसका ट्यूबराइजेशन बड़े आसानी से होता है, और यही ट्यूबराइजेशन एक हेल्दी ट्यूबर को जन्म देता है। For healthy tuber, the soil should be free from plant residue or stubble. Potato is a cool season crop which require low temperature, low humidity and bright sunny day for proper growth and development of the crop. The optimum temperature for tuber germination and satisfactory tuber growth is 25 degrees centigrade and 17 to 19 degrees centigrade respectively. The best temperature for vegetative growth is 20 degrees centigrade. Low temperature, high light intensity and short day are beneficial for early initiation of tuberization and tuber development. 20 degrees centigrade day temperature above 14 degree night temperature is optimum for the highest tuber formation. Temperature above 30 degrees centigrade completely stop the tuber formation. Seed and sowing. Direct selection of seed. Potato is commercially vegetatively propagated crop. Hence, the disease and pathogens are carried from mother tuber, which are used for planting to next crop. मतलब हमें इस प्रकार के ट्यूबर को सेलेक्ट करना चाहिए जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हों, क्योंकि
यदि हमने कोई बीमार या रोगग्रस्त ट्यूबर सीड को बो दिया, उसी से वह दूसरी पीढ़ी में जो है प्रवेश कर जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while making selection of seed tuber। हमको निम्न जो ये क्या क्या बिंदु हैं ट्यूबर सिलेक्शन करते समय उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, और इस पॉइंट के आधार पर हम लोग जो है ट्यूबर का सिलेक्शन करेंगे। जस्ट मिनट। मुंचुन कुमार, अनुराग कुमार, नंदिता तिवारी, कुमार, नंदिता तिवारी, अनुराग कुमार। हाँ 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 हाँ। हाँ चलिए चलो। The seed tuber should be 2 to type। मतलब 2 to type means कि जो ट्यूबर हम सेलेक्ट करते हैं वह एकदम मदर ट्यूबर होता है, उसके समान होना चाहिए। यूनिफॉर्म इन शेप, साइज एंड कलर। जो ट्यूबर हम ले उसमें देख लें कितने भी अनकलर हैं, अनसाइज हैं या शेप के हैं, उन सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए या उस समूह से अलग कर देना चाहिए। फ्री फ्रॉम सरफेस डिजीज, जैसा कि हमने बताया जो वर्ड, स्कैब, ब्राउन रॉट ये सब होता है, इस प्रकार के ट्यूबर को बीज के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। Each cut piece of seed tuber should have 30 to 40 ग्राम वेट। मतलब कि यदि हम ट्यूबर को देखे होंगे, बहुत बड़ा आलू भी होता है, तो उस पूरे आलू को हम यदि लगाते हैं तो बड़ा कास्टिंग इस पर आता है। और वैसे भी सबसे ज्यादा यदि किसी चीज में कास्टिंग आती है तो वह आलू के बीज पर आती है, आलू की खेती करने में। एंड जो उसका साइज, जो व्यास होगा वह 3.5 to 5 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए। The tuber should be right stage of sprouting and not shriveled। मतलब कि आलू होते समय उसका जो हुआ है वह एक प्रकार से विकसित होना चाहिए, और आलू जो हम पोटैटो जो सीड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उसपे किसी ट्यूब आप देखे होंगे कभी कभी कि जो आलू ऐसे रखा रहता है तो उसकी स्किन जो है थोड़ी लूज हो जाती है, उसपे हल्के हल्के छुरी टाइप की पड़ जाती है, जिसको कि संकुचित ये श्रिंकेज करने लगती है। तो इस प्रकार के आलू को हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज परचेज द सीड ट्यूबर फ्रॉम रिलायबल एजेंसी। ये किसी भी यदि हम मटेरियल को परचेज कर रहे हैं अपने रिगार्डिंग द कल्टीवेशन, सो वी कीप इन माइंड everything are purchased from the reliable agency।
देन सीड ट्रीटमेंट। अब आप बीज का उपचार कैसे करेंगे? सो सीड ट्रीटमेंट, द डीप the seed tuber in 0.2% solution of aereton 6 eglol 6। ये the aereton 6 and eglol 6 is a fungicide which is used for treating the seed tuber for 20 to 30 minutes to protect them from the attack of fungal disease। गांव में हम लोग देखते हैं कि आलू का बीज बोने से पूर्व उसके ट्यूबर को काटते हैं या जब पूरा साबुत भी बोते हैं तो एक लाल दवा पहले आती थी गांव में, उस लाल दवा से इसके सीड ट्यूबर को शोधित करते थे और करीब यह आधे घंटे के लिए गांव में नाद था या जो बड़े वाले कड़ाहे होते थे जिसको बनाया जाता था, इसमें जो है उसको हम आधे घंटे के लिए डीप कर देते हैं और फिर निकालने के बाद जो एप्रोप्रिएट हमारी राइट स्टेज है इसको रखने के लिए हम लोग रखते हैं। और इफ पार्शियल छायादार जगह होनी चाहिए, नहीं है तो वहां पर हमें इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। हाँ, हेलो, यस सर। कोई पूछ रहा है? यस सर। हाँ, कोई पूछ रहा है? हाँ, पूछिए। कोई नहीं पूछ रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो जब हम लोग उस बर्तन में उसको डीप करते हैं तो निकाल कर उसको हम लोग हमेशा पार्शियल शेडी प्लेस में जमीन पे फैला देते हैं ताकि जो एक्सेस वाटर होता है वह सब जो है रिमूव हो जाए। अच्छा, जनरली ये जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, टू ब्रेक द सीड डोरमेंसी, treat the whole seed tuber with ethylene chlorohydrin at ये नहीं जनरली अडॉप्ट करते हैं। The cut tuber piece deep into 1% solution of thiourea for 1 hour। Finally, the tuber treated with gibberellic acid 1 ppm for 10 minutes बिफोर प्लांटिंग। ये जिब्रेलिक एसिड से जब हम लोग उसको ट्रीट कर देते हैं ना तो उसका फायदा ये है कि जो उसका स्प्राउट होता है उसको यह इनहांस कर देता, बढ़ा देता है। तो जितना ही ज्यादा स्प्राउट जमीन के बाहर आएंगे एक थाले में उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ ट्यूबर जो है वहाँ पे बैठते हैं या विकसित होते हैं। बिफोर प्लांटिंग the treated tuber should be dried in shady place। जैसा मैं बता रहा था, cutting off the seeds, cut the large size tuber in small piece with the help of disinfected knife, निर्जर्मीकृत चाकू। The objective of cutting the seed tuber is to lower down the cost of seeds। During cutting, 2 to 3 healthy eye left on the each cut pieces। हर एक गांठ पर 2 से 3 हेल्दी आई को जो है मतलब वहाँ अकुआ जो है छोड़ना चाहिए। टाइम ऑफ प्लांटिंग, द प्लांटिंग टाइम ऑफ पोटैटो vary considerably from region to region। The optimum time for planting in Indian plains when maximum and minimum temperature remain around 30 to 32 degrees centigrade and 18 to 20 degrees centigrade respectively।
The best time of planting in hill commences when maximum and minimum temperature is 1 मिनट। हाँ भाई साहब नमस्ते। अरे जरा क्लास ले रहे थे, लंच 3 बजे बुलाया। चलिए तो ले लेंगे। चलिए मिलेंगे, ले लेंगे, क्या करना है। हाँ हाँ क्लास ले लें, ठीक है। So the best time of planting in hills commences when maximum and minimum temperature is 20 to 22 degrees centigrade and 12 to 18 degrees centigrade respectively. These are the planting and harvesting time of potato for different region of the India. In northwestern plain, it's include Jammu, Punjab, Western UP, Haryana and Rajasthan. The spring इसमें जो है मिड सितंबर लगाते हैं, मिड नवंबर दिसंबर में इसकी डिगिंग करते हैं। जो सेंट्रल प्लेन्स और नॉर्थ सेंट्रल प्लेन और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, यहाँ पे जो है अक्टूबर नवंबर में और फरवरी मार्च या जनवरी फरवरी में इसको लगाते हैं। तो ये क्या है कि जो ये आप देख रहे हैं, इट इज वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा, बाद में नवंबर में, उड़ीसा में नवंबर में, ये पूरे इंडिया का एक टाइम दिया हुआ है कि कहाँ पर हमको कब लगाना चाहिए और कब किस महीने में उसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। सीड साइज, spacing and seed rate. So the tuber having 25 gram weight and 2.5 to 3 centimeter dia and considered ideal for main crop planting. मेन क्रॉप हम लोग जो अक्टूबर में लेते हैं, अक्टूबर में जिसकी प्लांटिंग करते हैं जिस ट्यूबर की, वही जो है मेन क्रॉप होती है। अक्टूबर लास्ट वाली जो 20 अक्टूबर के बाद करते हैं। The seed rate depend upon size of seed tuber and spacing. Generally, the seed rate for round and oval variety is 15 से 18 क्विंटल, 15 to 18 क्विंटल and 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर रिस्पेक्टिवली। मतलब यदि हम गोल वाले आलू को लेते हैं तो उसका जो रेट है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू जो लंबोदर टाइप के आलू ओवल शेप के होते हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम 2.5 to 3 सेंटीमीटर व्यास के आलू को प्रयोग करते हैं बीज के रूप में, और स्पेसिंग लाइन से लाइन स्पेसिंग 45 सेंटीमीटर और ट्यूबर टू और लाइन में ट्यूबर टू ट्यूबर की स्पेसिंग 15 सेंटीमीटर रखते हैं, तो यह जो है 10 क्विंटल की आवश्यकता होती है। यदि 4 से 5 सेंटीमीटर डाया का आलू लेते हैं और उसको 15 से 50 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं तो 15 क्विंटल आवश्यक होता है। लेकिन जब वही 2.5 से 4 सेंटीमीटर व्यास के आलू को हम लोग 60 गुणे 25 सेंटीमीटर पर यूज करते हैं तो 20 क्विंटल इसकी आवश्यकता पड़ती है। मेथड ऑफ प्लांटिंग।
कॉमनली गांव में हम लोग जनरली यह देखे हैं कि किसान जो है पहले बरहा बनाता है और बरहे में कुदाल की सहायता से करीब 5 सेंटीमीटर गहरा कुआं बनाता है और कुआं बनाने के बाद वो जो है उस पे आलू 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पे ऐसा रखता है कि उसका कुआं वाला पार्ट जो आई पार्ट होता है वह ऊपर की तरफ हो। इसके बाद फावड़े से हल्की मिट्टी चढ़ा देता है उसके ऊपर, मतलब रिज बना देता है और बाद में उस रिज को और थोड़ा वह मोटा कर देता है जमने के बाद। सो पहला है फ्लैट बेड प्लांटिंग। It is commonly used in area having light sandy soil. The tuber are planted in flat in very shallow furrow. The method requires 2 earthings. First 30 to 35 days after sowing and second at 25 to 30 days after first earthing. ये मिट्टी चढ़ाते हैं। दूसरा है फरो प्लांटिंग। इन दिस मेथड ट्यूबर आर समझे नहीं सर। टू अर्दनिंग का मतलब समझे नहीं। अच्छा, टू अर्दिंग, अर्दिंग मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। ठीक है, गांव में देखे हैं ना आप लोग, किसान मिट्टी चढ़ाता है उस कुएं पे। तो एक क्या होता है, जनरली आलू में मिट्टी इसलिए 2 बार चढ़ाया जाता है कि आप अभी पीछे जो है ट्यूबराइजेशन वर्ड सुने ना, बोलिए आप लोग ट्यूबराइजेशन सुने ना। तो ट्यूबराइजेशन क्या है कि ट्यूबराइजेशन जब स्टार्ट होता है तो उसको डीप मतलब गहरे उसमें होना चाहिए, मिट्टी ज्यादा। अदरवाइज वही ट्यूबर जब जमीन के ऊपर आ जाता है तो आप देखे होंगे, आप 10 किलो आलू खरीदिए तो उसमें 2-4 ठो ऐसे मिलेंगे जिनका ट्यूबर हरे रंग का हो जाता मिलेगा आपको। देखे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। और जब उसको आप खाते हैं तो स्वाद में कसैला लगता है, तीखा लगता है, अजीब सा लगता है। तो वो होता क्या है कि जैसे ही ये सूर्य की रोशनी ट्यूबर पे पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस मतलब ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज द क्लोरोफिल फॉर्मेशन आर फाउंड upper part of the tuber which above the soil। तो इसीलिए हम लोग 2 बार उसको जो है, क्योंकि जनरली जो ट्यूबर फॉर्मेशन जो होता है ना, रोपने के करीब 40 से 45 दिन बाद जो है ट्यूबराइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है। इसीलिए सेकेंड अर्थिंग जो है इसमें मस्ट होती है। देन फरो प्लांटिंग। फरो प्लांटिंग क्या है? In this method, tuber are planted in furrow करीब 5 to 7 centimeter deep. This method is adopted in irrigated area having light sandy soil. It need raising मतलब वही रिज पूर्ण बनाना। तो जो हम बता रहे थे कि गांव में जनरली इस मेथड को यूज करते हैं हम लोग। 10 to 15 centimeter height soon after planting and second at 30 to 35 days after planting। अब देखिए कि फ्लैट बेड में क्या है कि पहली अर्थिंग 30 से 35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते हैं और दूसरा मिट्टी पहले के 25 से 30 दिन बाद। लेकिन जो फरो करते हैं तो फरो में गांव में तुरंत मिट्टी चढ़ाते हैं, फिर एक बार वो 35 से 40 दिन बाद जब उसमें खरपतवार सिंचाई करते हैं, यूरिया डालते हैं, उसके समय जो है करते हैं। और तीसरा है प्लांटिंग ऑन द रिज, पूर्ण के ऊपर बुआई करना। इसमें पहले 30 सेंटीमीटर ऊंची जो है 60 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे जो है हम लोग ये रिज बना लेते हैं और इसके दोनों साइड जो है उस रिज के दोनों साइड हम लोग जो है आलू की बुआई या प्लांटिंग करते हैं। तो गांव में जनरली फरो मेथड करते हैं और फ्लैट बेड जहाँ
हल्की सॉयल है वहाँ करते हैं। देन वाटर मैनेजमेंट इन पोटैटो, क्योंकि आलू potato is a root crop and its yield is related under the quality of soil. So there are water management in potato is too much essential for good production. क्योंकि आलू में हम आवश्यकता से ज्यादा आवश्यकता से कम जब सिंचाई कर देते हैं तो दोनों अवस्थाओं में हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए एक बैलेंस इरिगेशन की आवश्यकता होती है। Being a shallow rooted crop, potato require light irrigation frequently. The water requirement of potato is depending on the length of growing season, climatic condition, variety and soil type. In general, light soil should be irrigated at an interval of 8 to 10 days, where heavy soil at 12 to 15 days in the growing period. The water requirement of potato range from 350 to 550 millimeter. The irrigation should be given to half of the ridge height. ऐसा नहीं है कि हमने जो रिज बनाया है उस रिज को पूरा डिगो दे, इतना नहीं करना चाहिए। जब मान लीजिए आपके रिज की हाइट 20 सेंटीमीटर है तो आप 10 सेंटीमीटर तक केवल पानी उसमें लगने दीजिए और जैसे ही 10 सेंटीमीटर हाइट तक पानी लगता है आप पानी बंद कर दीजिए। तो देखेंगे आप आधे घंटे बाद जो आधा भाग है उस रिज का मेड़ या बंड का कुओं का वह जो है पूरा ऊपर तक पानी सोखकर गीला या तृप्त हो जाता है। The light irrigation should be given when frost is expected. क्योंकि जाड़े में हम लोग लगाते हैं और दिसंबर के महीने में हमारी फसल खेत में होती है, उस समय पाला एक बड़ा दैत्य के रूप में हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देता है। कभी कभी तो पूरी फसल चली जाती है। ऐसे सिचुएशन में यदि एक प्रिडिक्शन हो गया है कि आज रात में पाला पड़ेगा तो हमें हल्की सिंचाई जो है पूरे खेत की कर देनी चाहिए। द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन पोटैटो आर, मतलब हर चीज का एक अपना क्रांतिक अवस्था होता है, क्रिटिकल स्टेज होती है जिसमें कि हमको उस क्रिटिकल स्टेज के आधार पे सिंचाई करनी चाहिए। तो ये आलू के केस में ये क्रिटिकल स्टेज है। द क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन पोटैटो आर जर्मिनेशन, अंकुरण, ट्यूबर फॉर्मेशन, कंद का बनना, followed by earthing and tuber bulk, appear at 10 to 12, 30 to 35 and 55 to 60 days after planting respectively. So, withholding the irrigation about 15 days before the harvesting will harden the skin of tuber. अब आलू कब तक हम ये सिंचाई करते रहेंगे, मतलब जब तक कि वह मैच्योर न हो जाए और उसकी डिगिंग करने, खुदाई करने के करीब हाँ सर, ठीक ठीक सर। अच्छा ठीक ठीक, अभी 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 भेज देते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, तो चारा किया होगा लड़का? ना ना ना, 40 नंबर का है ना सर, 40 नंबर का, तो 10-10 नंबर का एक है। नहीं नहीं
हम अब बता दें आपको, इसमें आप देखेंगे ना सर, तो 32 से लेके 36 के बीच में सब आएंगे, बस इतना वेरिएशन होगा। नहीं सर, अभी हम क्लास ले रहे थे ना, तो उसके बाद तुरंत भेज दे रहे हैं। ठीक सर, ठीक। तो इसलिए हम इरिगेशन रोक देते हैं, ताकि आप आलू जैसे सिंचाई करते रहिए और उसकी डिगिंग कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आएगा कि स्टोरेज के समय फिर वो सड़ने लगता है। तो ये तमाम सड़ने लगता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए करीब हम तैयार होने के बाद जब उसकी पत्तियां पूरी, अब ये लगता है कि आलू खत्म हो रहा है, मतलब ऊपर का फोलियर पोर्शन, लीफी भाग, तो हम 15 दिन के लिए कतई सिंचाई नहीं करते हैं और फिर उसकी डिगिंग करते हैं। द इरिगेट द फील्ड लाइटली जस्ट आफ्टर अर्थिंग। जब हम लोग मिट्टी चढ़ा लेते हैं, उसके 3-4 दिन बाद में खाद डालते हैं, फिर मिट्टी चढ़ाने के 3-4 दिन बाद उसका एक हल्की सिंचाई करते हैं, और उसके बाद क्रॉप जो है हमारी बड़ी फास्ट हो लेती है। सर हाँ सर, फ्रॉस्ट वाला का जो बताया कि उस समय इरिगेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। फ्रॉस्ट मतलब ये होता है ना, देखिए क्या है कि गाँव में हम बोलिए सर वही पूछ रहे थे कि फ्रॉस्ट का सर इफेक्ट क्या पड़ता है, जैसे उस पे ऐसा क्या गलत इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, बता रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जो 3-4 दिन मौसम आप जाड़े में देखते हैं, 4-5-6 दिन धूप निकलती ही नहीं है ना, कुहासा जैसा पड़ता है ना, देखा है कि नहीं ये कंडीशन आपने? तो उस कंडीशन में आलू में सबसे ज्यादा जो है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट एक बीमारी है जो फंगल होती है, इसका इतना ज्यादा होता है कि कभी कभी पूरी की पूरी फसल बेकार हो जाती है। इसीलिए हम लोग किसान को हमेशा यह कहते हैं कि आप वॉच करते रहिए। आज पाला पड़ा है, आज फ्रॉस्ट कुहासा पड़ा और कल भी संभावना है, तो बिना देर किए आप कोई भी फंजीसाइड लाइक डाइथेनम 45 और मैनकोजेब और बाविस्टिन, इनका 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर की दर से आप बिना किसी से पूछे तुरंत स्प्रे करिए। तो स्प्रे कर 2-3 स्प्रे लगातार आप, मतलब आज किए परसों करिए, फिर 2 दिन गैप देके करिए। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर होता है। और सिंचाई इसलिए की जाती है कि थोड़ा, आप गांव में देखते हैं जब हम लोग गेहूं में सिंचाई जाड़े में करते हैं तो भाप उठता है, पानी गर्म होता है, तो ये जो है थोड़ा उसके असर को कम करता है, पाले के असर को सिंचाई जो है। ठीक है ना? ओके हेलो, यस सर, क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, मतलब आप ये देखिए। हाँ सर, कभी कभी खेत में मतलब ठंड के दिनों में लोग राख छींटते हैं ले जाके आलू की फसल पे, राख, जला हुआ राख छींटते हैं ले जाकर खेतों में ठंड के दिनों में। ऐसा उसका भी यही वजह है कि वो जो राख होता है ना, एक वो लेयर का काम करती है ना पत्ती के ऊपर, पौधे के ऊपर है, तो वो जो लेयर काम करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको मान लीजिए कह लीजिए, काम करती है जो कि पाला को रोकती है, तो उतना इफेक्ट नहीं होने देती है, कोल्ड इंजरी नहीं हो पाता है लीफ के ऊपर। ठीक है, यही है। देन वीड कंट्रोल के लिए 2 मैनुअल वीडिंग which first add 15 to 20 days after planting and second weeding
weeding come going at 18 at 30 to 35 days after planting are sufficient to control the weed. The first weeding may be replaced by use of herbicides, but second weeding and hoeing at uh, earthing is must. The most common herbicide used to control the weed in potato are flucloraline 7.7 to 1.7 kg per hectare or pendimethalin 0.5 to 1 kg per hectare. Used as pre-planting, मतलब आलू रोपने से पहले हम लोग खेत में उसको मिला देते हैं. While oxyfluoroquine 1 to 2 kg per hectare applied as pre-emergency. जमने से पहले और आलू बोने के बाद पूर्ण के ऊपर हम लोग इसका ये कर देते हैं. Then earthing, मिट्टी चढ़ाना. If tuber are exposed to sunlight, they will start to synthesize anthocyanin and chlorophyll. The chlorophyll formation in tuber check the accumulation of starch, which result in a small size tuber with bitter in taste due to presence in solanine. जो आलू हरा हो जाता है और खाते हैं हम लोग तीखा लगता है, वो ड्यू टू सोलेनिन की वजह से. Generally, 2 earthings are sufficient in flatbed planting. First at 30 to 35 days after planting, and second at 25 to 30 days after first earthing. Tuber formation. Potato is modified underground stem which bear tuber at stolon end. Stolon arise from lower node and start to form 25 20 to 25 days after planting. Usually, tuber start to form in about 30 to 35 days after planting. Degree centigrade and completely cease above 30 degree centigrade. यदि तापक्रम कभी 30 के ऊपर हो जाता है, उस समय ट्यूबर फॉर्मेशन पूरी तरह से रुक जाता है. वैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पे सबसे अच्छी होती है. long they can prefer long and short day respectively for their better tuber development. Harvesting. The time of potato harvesting are depend on the number of factors such as variety, market price, weather condition, and purpose of the crop. Early, medium, and late variety mature in 18, 19 to 100 and 120 days after planting, respectively. Withhold because they will harden the skin of potato tuber. Then it is a new topic, seed plot technique. Seed plot technique. Seed plot technique क्या है कि चूंकि आलू किसान को जो है नहीं बढ़िया मिल पाता है, तो डॉक्टर एस रामानुजम जो कि पहले डायरेक्टर थे जो ये आलू रिसर्च अनुसंधान केंद्र के, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की. यह टेक्निक किसान को हम दे दे और कैसे किसान जो है
तो इस टेक्निक में कुछ पॉइंट हैं जिनको कि हम बता रहे हैं आपको। और इसी डॉक्टर एस रामानुजम ने सीड प्लॉट टेक्निक को डेवलप किया था। द डिजीज फ्री पोटैटो सीड ट्यूबर आर being produced in the hills to supply the farmer of plain. Due to low production and great demand of disease-free tuber seeds, there is a wide gap between demand and supply. To meet out the tuber seed requirement, CPRI, Central Potato Research Institute, has developed a technique for production of disease-free quality tuber seed in subtropical plains of North India. क्योंकि जो डिजीज फ्री ट्यूबर की सप्लाई केवल हिल के किसान ही जो है प्लेन के किसान को करते थे, बट बाय दिस टेक्निक द फार्मर्स ऑफ सबट्रॉपिकल और प्लेन रीजन ऑल प्रोड्यूस द डिजीज पोटैटो ट्यूबर्स. This technique is known as seed plot technique. The following main steps are essential for this techniques are procure the एक बार आप सीड इसको जो है CPRI के स्टेशन से मंगा लीजिए. Procure the disease free seeds tuber stock from a reliable sources. Select aphid free suitable aphid एक वो जो हम लोग कीट होता है. Location for seed plot technique. Planting the crop in first week of October, Punjab, while second week of October in Rajasthan, Haryana, Western UP and Delhi, and the third week of October in Eastern UP and Bihar. Incorporate 10 kg, 10 gram incorporate Foret insecticide है Foret 10 gram Foret 10G Foret 10G at the rate of 15 kg per hectare in the soil at the time of last plowing to control the insect vector like white fly and jacid. आलोक कुमार. आलोक कुमार, राणा प्रताप, श्रवण कुमार, राणा प्रताप. राणा प्रताप प्रेजेंट सर. हाँ वही देख रहे हैं राणा प्रताप. बाकी सब लोग छोड़ के चले गए हैं. तो ये करते हैं. ऑलवेज यूज द हेल्दी लार्ज साइज 4 to 6 सेंटीमीटर डाया लार्ज साइज सीड ट्यूबर एंड मल्टीपल स्प्राउट ट्यूबर फॉर स्प्राउट मतलब वो यहाँ फुआना जिसको कहते हैं फॉर प्लांटिंग. फ्रेशली हार्वेस्टेड ट्यूबर्स obtained from hills require treatment to break dormancy before they are used. Growing the crop at 50 into 20 centimeter spacing by maintaining a minimum isolation distance of 20 meter for foundation seed and 5 meter for certified seed production. Earthing up should be done immediately after transplanting. Use the herbicide to control weed and avoid delay earthing up. As far as
possible to minimize the incidence of mechanically transmitted viruses. Examine the seed plot twice during season to rock of type plant and plant soon symptom of mottling, mosaic, intervenal necrosis, crinkle and rolling of leaf. जो इस तरह के पौधे आपको खेत में दिखाई देते हैं, उन पौधों को हमको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। मेक ए फर्स्ट इंस्पेक्शन, प्रथम निरीक्षण, soon after full emergence of plant and second at 20 days of later. 2 बार हमको पूरे क्रॉप का निरीक्षण करना चाहिए और उसमें जो भी इस तरह के एबनॉर्मलिटी जिस प्लांट में पाई जाती है उसको हमको रिमूव कर देना चाहिए। स्प्रे द क्रॉप विथ डाइथेनम 45 at the rate of 0.25% during November December in plains and with monoprotophos at the rate of 0.03% during the beginning of the December in plain। मतलब हमें आए रोग कीड़ा दिखे या न दिखे, हमको इस क्रॉप पे नवंबर दिसंबर में 2 बार डाइथेनम 45 और मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे बचाव या सुरक्षात्मक रूप से जरूर प्रयोग करना चाहिए। Withhold the irrigation by 3rd week of December, that is 10 to 15 days before removal or killing of the हालम। हालम हम लोग जो है ना, जो उसका हरा वाला पोर्शन ऊपर होता है उसी को हालम कहते हैं। Remove the regrowth of stem soon after the emergence. The crop should not be irrigated after dehalming. डिहाल्मिंग मतलब जो हालम्स होते हैं, हम लोग देखे हैं कभी कभी उसको काट देते हैं, काट के फिर वैसे आलू को छोड़ देंगे खेत में, बाद में उसके 10-12 दिन बाद 15 दिन बाद उस आलू को खोदते हैं। The crop should not be irrigated after dehalming। वही चीज कह रहा है कि हमें ऊपर का फोलियर भाग काटने के बाद खेत की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। Lift the tuber about 10 to 15 days if dehalming, when the skin of tuber become hard and chance for skin bruise are minimum during lifting। मतलब जब हम यह आश्वस्त हो जाएं कि इसकी जो स्किन है अब वह कठोर हो गई है, हमें डिगिंग करके उसको उठाते लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग करने में कोई नुकसान नहीं है, मिनिमम इंजरी है, तब हम जो है उसकी डिगिंग कर लेते हैं। एंड डिहाल्मिंग एक प्रक्रिया है। द रिमूवल ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ पोटैटो इन द सीड क्रॉप टू अवॉइड द इन्फेस्टेशन ऑफ वायरस कैरिंग इंसेक्ट वेक्टर इज कॉल्ड डिहाल्मिंग। मतलब जो ऊपर का फोलियर पत्ती भाग है उसको हटाना ही जो है हम डिहाल्मिंग कहते हैं। इट शुड बी डन आइदर बाय कटिंग और हालम और किल बाय स्प्रेइंग द टोटल किलर हेर्बिसाइड्स लाइक पैराथ्रॉन। ठीक है, जनरली हम लोग काट लेना चाहिए, कम से कम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करना चाहिए। डिहालम द प्लांट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर इन पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड ए वीक और लेटर इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। मतलब कि हमें जनवरी के फर्स्ट वीक में बिहार और ईस्टर्न यूपी में डिहाल्मिंग किया करती थी। When the aphid population build up and reach to critical number 20 aphids per 100 leaf, and chance for viral infection become very high. Cure the produce by keeping it in a heap in cool place for about 10 days and divide in 4 graded undersize, small, seed size and oversize. After curing, dip the graded tuber in egg lol 3
or electron 6 at the rate of 0.5% solution for 25 to 30 minutes to protect them from surface burning. Store the produce in cold storage in sealed and properly labeled bag. सर हाँ सर इसके पहले तो बताएं कि जो भी अभी जो पढ़ रहे थे डिजीज फ्री पोटैटो सीड है, ठीक है ना सर? सर अभी जो बता रहे थे आप कि डिजीज फ्री पोटैटो सीड जो मतलब जिसका बनाया गया था, तो सर वो डिजीज फ्री फ्रॉम विच इम्यूनिटी किस चीज से है सर? जो अभी पहले पढ़ रहे थे पैरामीटर्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा इसमें कि नहीं? हम मतलब नहीं समझे क्या कहना है आप? सर जो बेसिक पैरामीटर फॉलो करना पड़ता है टू प्रोड्यूस। हाँ नहीं, जो सीड प्रोडक्शन के लिए आप जो यूज करेंगे ना, मान लीजिए आपको डिजीज फ्री सीड प्रोडक्शन करना है ना, यस सर, तो आपको वो बेसिक वाले पैरामीटर फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। ये इसीलिए बनाया ही गया है, ये मतलब ये स्टेप उसमें इन्वॉल्व किए गए कि हमको कब डिहॉल्मिंग करना है, कैसे कब रोग आए या ना आए, हमको स्प्रेइंग करना है, और जो क्रिटिकल स्टेज है हमको, इसीलिए ये अलग से बना हुआ है। ये जो कल्टीवेशन हम करते हैं उससे हट के ये स्टेप्स हैं, ठीक है ना सर? एज द नेम सजेस्टेड कि डिजीज फ्री है, तो सर फ्रॉम विच डिजीज? जैसे अभी इसके पहले बता रहे थे कि फ्रॉस्ट का मार भी नहीं, हम बता रहे हैं आपको। जैसे जनरली आप आलू खरीदते हैं मार्केट में ना, उसके ऊपर देखते हैं कि कभी कभी मस्से से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उभार से। देखा है आपने? यस सर। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि हल्के हल्के खुरदुरे से हो जाते हैं आलू, एक यह है। और एक और यह है जो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट सबसे ज्यादा आलू में आता है, उससे जो है ये बच जाता है। ये 3-4 डिजीज ऐसे हैं कि जिससे हमको यह पूरी तरह से क्योर हो जाता है, ठीक है? ओके सर, यस सर। हाँ, एक होता है टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। अब यह देखिए एकदम हट के है टीपीएस। वह क्या था? एसटीपी था। एसटीपी सीड प्लॉट टेक्निक है यह। एसटीपी ऑफ पोटैटो, और वो क्या है? टीपीएस है, ट्रू पोटैटो सीड है। अब देखिए, ट्रू पोटैटो सीड इज मैच्योर ओव्यूल ऑफ पोटैटो रिजल्टिंग फ्रॉम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। ए सिंगल प्लांट में प्रोड्यूस 50 to 100 berries मतलब फल, एंड ए सिंगल बेरी कंटेन अबाउट 150 to 200 seeds। एक फल में 150 से 200 बीज होते हैं। इस प्रकार और 1,500 500 to 2,000 सीड्स मिलके 1 ग्राम टीपीएस बनाते हैं। मतलब 1 ग्राम आपने टीपीएस का बीज लिया तो उसमें 1,500 से 2,000 बीज होंगे। द टीपीएस इज मेनली यूज्ड टू डेवलप न्यू पोटैटो कल्टीवर and now gaining popularity to raise the commercial crop. Only 100 to 150 gram TPS is required to raise the crop in 1 hectare area, which costing 5,000 to 7,500 only. Planting through traditional method require, जो आज की डेट में हम करते हैं, अब उसमें देखिए कि 25 to 30 क्विंटल सीड ट्यूबर पर हेक्टेयर आर रिक्वायर्ड एंड दे कास्टिंग 25,000 रुपीज पर हेक्टेयर, केवल बीज का। अब यही आप देखिए कि टीपीएस से यदि करते हैं और उसके ट्यूबर से करते हैं तो कितना वेरिएशन हो रहा है। द एडवांटेजेस ऑफ टीपीएस ओवर द ट्रेडिशनल मेथड: reduction in cost of cultivation due to low cost planting material,
elimination of seed tuber burn disease like scab, black scurf, viruses and tuber worm। जब आप सीड से करेंगे तो इन सब से हम जो है बच जाएंगे। About 25 to 30 क्विंटल पोटैटो सीड ट्यूबर पर हेक्टेयर यूज एज सीड ट्यूबर विच सेव फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यदि हम टीपीएस का यूज करते हैं तो जो हमारा ट्रेडिशनल में 25 से 30 क्विंटल खप रहा है, जा रहा है, उसको हम ह्यूमन कंजम्पशन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। लेस प्रॉब्लम इन स्टोरेज। टीपीएस यदि आप करते हो तो इसके लिए किसी स्पेशल स्टोरेज या कोल्ड स्टोर की आवश्यकता नहीं होती है, आप कहीं भी कर सकते हैं। लेस कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट देन सीड ट्यूबर, क्योंकि यह क्वांटिटी में बहुत कम होता है। अब आपको पता है कि 150 ग्राम से या 200 ग्राम में हम 1 हेक्टेयर आलू की खेती कर सकते हैं, तो आप बड़े आसानी से 5 किलो भी अपने हाथ में लिए चले जाएंगे। लेकिन 5 हेक्टेयर के लिए यदि आपको खेती करना है और आपको ट्यूबर सीड ले जाना है तो कितना आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यह आप सोच सकते हैं। देन द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पोटैटो, दैहिक विकार इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या होता है आप सब देखे होंगे, ब्लैक और हॉलो हार्ट। इन दिस डिसऑर्डर central tissue of the affected tuber show dark grey black discoloration due to suboxidation। ठीक है, इसको ब्लैक हार्ट कहते हैं। लेटर यही चीज जब बाद में लेटर अफेक्टेड टिश्यू ड्राई एंड सेपरेट टू फॉर्म कैविटी, और जब यह सूख कर एक होल बना देता है ब्रॉड अबाउट वेरी रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूबर, तो इसे जो है होलो हार्ट कहते हैं। द सिम्टम कैन बी सीन ओनली आफ्टर कटिंग द ट्यूबर ड्यू टू इंटरनल होने की वजह से आप जब तक आलू को काटेंगे नहीं तब तक जो है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। द ब्लैक और होलो हार्ट इज मोर कॉमन इन लार्ज साइज ट्यूबर। आप बड़े आलू, बड़े आकार के आलू को जब काटिए तो ये जनरली समस्या दिखती है। कॉजेज क्या कारण है इसके, हाई सॉइल टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ ट्यूबर, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबर फॉलोड बाय सडन इरिगेशन, अनफेवरेबल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, storage of tuber at high temperature 3 to 4 degree centigrade temperature is not safe to store the potato। ठीक, मतलब कि जब टेम्परेचर 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और उस समय क्रॉप की ग्रोथ और मैच्योरिटी के पास होता है, ये इसकी वजह से होता है। टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है और डेवलपमेंट और हम लोग अचानक से सिंचाई कर दें हैं, सप्लाई द ऑक्सीजन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में उचित वायु का संचरण न होने से ये प्रॉब्लम होता है। कैसे कंट्रोल करेंगे, फॉलो क्लोजर स्पेसिंग, यदि बड़ा आपके पास है तो स्पेसिंग कम कर देते हैं। रिमूव द फोलिएज एंड अवॉइड ओवर फर्टिलाइजेशन, बहुत ज्यादा खाद का भी प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। इरिगेट द क्रॉप फ्रीक्वेंटली टू मेंटेन द सॉइल टेम्परेचर बिलो 33 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन इन स्टोरेज एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, स्टोर द ट्यूबर इन कोल्ड स्टोरेज एट 2.25 to 3.3 टेम्परेचर। ये देखिए आप, जनरली आपको ये सिम्टम दिखाई देता है बड़े आकार के आलू में। फिर ये पोटैटो ग्रीनिंग, जो हरा हो जाता है आलू इस तरह का, ये द ट्यूबर टर्न ग्रीन इन कलर व्हेन ट्यूबर आर एक्सपोज्ड टू डायरेक्ट सनलाइट
they will start to synthesize anthocyanin and chlorophyll. The green pigment produced is solanine, which slightly poisonous and makes the tuber unfit for consumption. क्योंकि यह पॉइजनस होने की वजह से हम इसको खा नहीं सकते। कंट्रोल अर्थिंग अप शुड बी डन टू अवॉइड द एक्सपोज ऑफ tuber to direct sunlight. Two earthing up are sufficient in flat bed planting. First at 30 to 35 days after planting, and second 25 to 30 days after earthing up. Then स्प्राउटिंग इन स्टोरेज, यह समस्या स्टोरेज में हम लोग को बहुत देखने को मिलती है। जो स्कैब डिजीज की बात कर रहे थे, यह देखिए जो है इस तरह से चकत्ते चकत्ते से इसके ऊपर होते हैं। ये क्या है? स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर इन स्टोरेज इज मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज which deteriorate the quality and make the product unfit for consumption. The intensity of sprouting depends on the variety, maturity, storage, temperature, and relative humidity. Control. Control. Grow those variety with sprout plate. Spray the crop with malic hydrazide (MH) malic hydrazide at the rate of 3,000 ppm at 15 days before harvesting. Store the potato tuber in cold storage at 2 to 4 degrees centigrade and 90 to 95% relative humidity. Then disease of potato and their control. Early blight. It is caused by Alternaria solani, the appearance of dead spot with concentric ring on the leaf. Fungus is soil worm. Warm, moist weather is favorable for development and spread the disease. Control. Grow the varieties like Kufri Jeevan, Kufri Sindhuri, Kufri Nami. Follow the crop rotation. Adopt phytosanitary method. Spray the crop with Dithenum 45 at the rate of 0.25% at 10 days interval, starting from the appearance of the disease. ये देखिए जो अर्ली ब्लाइट का ये सिम्टम होता है, ये पूरा जो है, ये देखिए कंसेंट्रिक रिंग बने हुए हैं, ये रिंग से बने जाते हैं। ये इस तरह से आपको जो है खेतों में दिखाई देगा। पैन लेट ब्लाइट, देखिए वो क्या था? अल्टरनेरिया सोलनिस से था। यह जो फाइटोथोरा इन्फेस्टान से होता है। सर्कुलर और इरेगुलर वाटर सॉल्ट स्पॉट्स अपीयर ऑन द लीव्स which soon turn to brown black lesion. Later, lesion enlarge and collapse, killing the entire leaf. White powdery growth of fungus appear on the underside of the leaf. Cool, moist environment is favorable. Disease is infected by seed tuber. Control. Use healthy, disease-free and certified seed tuber for planting. Grow the variety like Kufri, Jyoti, Kufri, Jeevan. ये जितनी वैरायटियां हैं सब जो है इसके प्रति अवगत। तो देन प्रोफाइलेटिक स्प्रे। प्रोफाइलेटिक स्प्रे का मतलब कि कोई इस स्प्रे का शेड्यूल नहीं है। एक बार मौसम गड़बड़ हुआ तो आप तुरंत अब उसको करते रहिए जब तक कि मौसम सही न हो जाए। स्प्रे ऑफ ब्लाइट ऑफ at the rate of 0.3% or Dithenum 45 at the rate of 0.25% at 7 days interval. Spray the crop with
Dithium 45 45 at the rate of 0.25% at 15 days interval, starting the appearance of disease. ये देखिए, ये जो है लेट प्लास है, जो है इसके निचले पत्ती पर, ये आप इसमें क्या है कि किनारे से ये पत्ती जो है, ये किनारे से जो है डिजीज का स्प्रेड जो है होता है। ये देखिए इसमें तना होना, ये मतलब ये ज्यादा जो लेट ब्लाइट होता है वह ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट की अपेक्षा यह बहुत ज्यादा जो है घातक होता है लेट ब्लाइट। Then black scurf, the disease caused by Rhizoctonia solani, superficial growth of fungus develop on the infected tuber. The black color sclerotia body are found on the skin of tuber. The source of inoculum is soil and infected tuber. मतलब यह soil और infected tuber दोनों से होता है। इसके लिए डिजीज फ्री सीड ट्यूबर हम लोग प्लांटिंग के लिए प्रयोग लाना चाहिए। फॉलो क्लीन कल्टीवेशन, ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी, एडॉप्ट क्रॉप रोटेशन विथ मेज, सनहेम, हैचा, इनकॉर्पोरेट ब्रेसिकॉल एंड सॉडस्ट एट द रेट ऑफ 30 kg and 25 kg per hectare respectively in the soil at the time of planting. Follow the allow to dip the seed tuber in eglol or aeroton 6 at the rate of 0.3% for 10 minutes before planting. ये है। ये देखिए, मैं इस तरह का आप लोग देखे हैं कि नहीं आलू पर? यस सर। यही जो है ब्लैक स्कर्फ होता है, यही हैं? हेलो, यस सर। हाँ सर। यही ब्लैक स्कर्फ है, ये लक्षण जो है ये ब्लैक स्कर्फ है। Yes. हाँ, फिर तो सर ये सब डिजीज फ्री पोटैटो में नहीं होता? क्या चीज? डिजीज फ्री पोटैटो में ये सब, सर डिजीज फ्री पोटैटो में ये सब नहीं नहीं होता? नहीं होगा। प्रोटेक्शन है ना। हैं? बोलिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर। Then what disease? The disease caused by ये उससे होता है, it is serious soil burn disease. ये भी मिट्टी से ही होता है। Mostly found in West Bengal and surrounding area. Affected part exhibit lumpy and warty outgrowth. The wart is distorted, proliferated branches structure grown together in a mass-like structure on the tuber. Control, follow quarantine measure, avoid cultivation of potato on wart-affected soil, grow the resistant variety. Soil sterilization should be done by copper sulfate or 5% formalin before planting. ये भी आप स्ट्रक्चर आलू पर देखे होंगे, देखा है कि नहीं आपने? यस सर, कॉमन है सर, दिखता है। हाँ, ये कॉमन, यही वार्ड डिजीज है। ये एंड कॉमन स्कैब, the disease caused by fungus, the infected tuber show the superficial growth area of corky tissue. Organism survive for many years in the soil and remain active at pH range below 5.4 or above 7. Low soil moisture also favor the multiplication of the pathogen. Sometimes it is seen that corky tissue are found slightly
below the healthy skin of tuber. ये एक से 3 मिलीमीटर उसके जो इस छिलका होता है, जो स्किन होता है, उसके नीचे तक जो है कॉमन स्कैब होता है। और जो एक और स्कैब था, वो ब्लैक स्कैब, वो जो है केवल ऊपर होता है, वो नीचे नहीं जाता है। Control, grow the resistant or tolerant variety, locate the healthy and disease-free tuber for planting, follow 4-year crop rotation। यदि जहाँ आ गया है 4 साल आलू को उस खेत में नहीं लगाना चाहिए, और वहाँ पे केवल शुगर और कैरेट लगाना चाहिए। फिर 4 साल बाद तब आलू लगाना चाहिए। Treat the seed tuber in solution of Eglol 6R emission 6 at 0.25% for 30 minutes before planting. Keep the field in well irrigated condition during tuberization. Maintain the soil reaction between 5 to 5.3। ये देखिए, ये भी आप लोग देखे होंगे, इस तरह का देख। हाँ, ये इसमें ये है कि इसके स्किन, ये जो आलू की स्किन है ना, इसके नीचे तक ये होता है। ये देखिए, सब जो नीचे तक होता है, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया सर। और किस 1 मिनट जरा अटेंडेंस हम देख लें, कितने लोग हैं। आलोक हो गए, अनुराग नया कोई नहीं है, कुणाल, मुंचुन, प्रत्युष प्रभात हो गए, राहुल रंजन हो गए, राणा प्रताप, बाकी सब अटेंडेंस सबका है, जो है वो वही है। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? सर मेरा नहीं बोले चंदन, चंदन